Hello and namaskar friends. Welcome back to Uma Talks, and here today I'm back with another book review, and today the review which I'm going to do is a famous book known as Ikigai. This famous book, this is the book Ikigai, and this is a book, it's read worldwide, and it's a very famous book. Now this is a Japanese concept of way of living, and after reading this book I concluded that yes, everybody in their life must adopt this concept and must practice this, okay, for a happy life. Now what is this Ikigai? So as I told you that Ikigai is a Japanese concept, and this there's no translation of English as such. This is a Japanese word, and moreover it means roughly the purpose of life. Okay, the purpose of life. Now friends, this book, as I told you, this is a Japanese concept. So it deals with a island in Japan known as Okinawa. And this Okinawa जो जगह है, जो आइलैंड है, यहाँ पे 100 साल और 100 से ऊपर वाले बहुत पूरे वर्ल्ड में, if we compare the maximum people of 100 years and beyond 100 years यहाँ रहते हैं. तो this attracted the attention of the researchers, okay, and everybody wanted to know the reason कि ऐसा क्या है ओकिनावा में कि यहाँ पे लोगों की जो उम्र होती है, लोगों का जो लाइफ स्पैन होता है वो इतना लंबा होता है. So what is there in Okinawa? So this book actually deals with that. It attracted the attention of the researchers, and they wanted to find out actually what is the reason of the people having a longer span of life when we compare in the whole world. जब हम पूरी दुनिया में compare करते हैं तो सबसे ज़्यादा लोग 100 साल और 100 साल से ऊपर वाले लोग यहाँ रहते हैं. इतना ही नहीं, जो रहते हैं वो healthy life जीते हैं, they are happy and they have that glow on their face, okay, and that can be seen, means, and they never retire, they keep working. मतलब अपनी ज़िंदगी के लास्ट डे तक वो काम करते रहते हैं और वो खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं, स्वस्थ ज़िंदगी जिसको बोलते हैं, and that is what matters. So this is Ikigai. Now next. So as you all know that हम सब काम करते हैं, we all are busy in our own works, okay, but there are times when we are not happy with our work, okay, we keep working because हर किसी को रोटी कमाना है, हर किसी को पैसे कमाने हैं, तो वो काम करता है. But there are times, many of the times we are not happy with our work. So what do we do actually? Okay, what actually we do during that time? We are not happy, but still we work. Okay, and we work to earn money. So we are good at that thing, but we don't love that work, and we work. Okay, there is a situation like this. There are many of the times where we love some of the work and we do it, but we are not good at that. Okay, there are situations when we see that इस चीज़ का बहुत importance है, this is liked by the people in the world, this is appreciated by the people in the world, and hence we do. Okay, and many of the times we try to do to earn money. So there are these 4 things for which we earn money. Now what is Ikigai? When all these 4 come together, that is Ikigai. Come with me and I'll make you understand. We will learn together. So please follow me. So these are 4 circles. So friends, these are the 4 circles, just trying to make you understand the Ikigai. Okay, these are the 4 circles in our lives. Okay, so this is तो हमको मिलता है क्योंकि हम बहुत अच्छे होते हैं उस सब्जेक्ट में, और
लेकिन कहीं ना कहीं एम्प्टीनेस होता है, क्योंकि हम दुनिया के लिए कुछ नहीं करते, हमारी कोई यूज़फुलनेस नहीं होती, यूटिलिटी नहीं होती है सोसाइटी के लिए, और हम उस चीज़ को पसंद भी नहीं करते। तो ये हो गया हमारा। तीसरा है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा करते हैं जो सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा है, ओके, और उसके लिए ये दोनों मतलब हमको वो अच्छा भी लगता है और हम सोसाइटी को भी देख के करते हैं। हम सोसाइटी के लिए वो जो भी काम है हमारा वो यूज़फुल है, तो उस काम को हम मिशन बोलते हैं। वो हमारा मिशन हुआ, ठीक है। तो मिशन हुआ जो द वर्ल्ड एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अस एंड व्हाट वी लव टू डू, दैट इज कॉल्ड मिशन। और ये दोनों करने में हमको फुलनेस, हमको डिलाइट मिलता है, लेकिन यहाँ पे हम पैसे नहीं कमाते हैं। हमको अच्छा लगता है, हम करते हैं, और वर्ल्ड भी हमसे एक्सपेक्ट करता है, हम सोसाइटी के लिए भी करते हैं। तो वहाँ हम पैसे नहीं कमाते, तो वहाँ वेल्थ नहीं होता। एक्साइटमेंट होती है, फुलनेस होता है, सेटिस्फैक्शन होता है, लेकिन वेल्थ नहीं होता। उसके बाद आता है कि हम सोसाइटी ऐसा कुछ करते हैं जो दुनिया में बहुत चर्चित है, जो सोसाइटी में बहुत चर्चित है, द वर्ल्ड वांट्स एंड वी गेट पेड फॉर दैट, दैट इज़ कॉल्ड वोकेशन। जैसे अभी काउंसलिंग बहुत ज़्यादा चल रहा है, या इस तरह के जो भी वोकेशंस चल रहे हैं, और उसके लिए हमको पैसे मिलते हैं। तो हम देखते हैं कि आज के डेट में कौन सा ऐसा चीज़ है जो वांट में है, और हम वो काम करते हैं एंड वी गेट पेड, दैट इज़ कॉल्ड वोकेशन। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत, क्योंकि हमको उस चीज़ से बहुत प्यार भी नहीं होता, तो वहाँ पे अनसर्टेनिटी रहती है, और हम उसमें अच्छे भी नहीं होते, तो कभी भी किक्ड आउट होने का, अगर हमसे कोई अच्छा बंदा आ गया तो रिप्लेस हो जाएंगे, वो सारा डर बना रहता है। तीसरा है उसके बाद कि हम उस चीज़ में अच्छे भी हैं, आई एम गुड एट दैट एंड आई लव डूइंग दैट, ओके। तो आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं फाइंड आउट योर पैशन, फाइंड आउट योर पैशन। तो यही है कि यू आर गुड एट डूइंग दैट वर्क एंड यू लव डूइंग दैट वर्क, दैट इज कॉल्ड पैशन। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमको सेटिस्फैक्शन मिलती है, ओके, और क्या मिलता है, लेकिन वी डोंट गेट पेड फॉर दैट। तो वहाँ पे भी हमारी पेमेंट नहीं होती, वेल्थ नहीं होता हमारे पास, सेटिस्फैक्शन होता है एंड वी इंजॉय डूइंग दैट वर्क। तो फ्रेंड्स, ये चारों चीज़ अगर अलग अलग है तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स है। द मेन इंटेंशन इज कि हमको अपना इकिगाई, वो चारों मिलके ये जो सेंटर पोर्शन है इकिगाई, ये हमारा इकिगाई है। तो जब ये चार मिल गए, व्हाट आई एम गुड एट, what I love doing it, the same thing I should love doing it, and I'm beneficial for the society, and through that I earn money also. तो ऐसा कोई काम जो ये चारों इन्वॉल्व करता हो वो हमारा इकिगाई होता है। So this is how we can find out our ikigai. Okay, I hope I was able to make you convey what I wanted to convey, and hope you got it. And friends, there is a very, very interesting, you can say, portion in this book on page 112, where these researchers have interviewed people from Okinawa, and they have asked them that what is it which helps you to live for such a longer life, which keeps you happy, and you are very optimistic, you enjoy your life, and what is it which makes you so charming and so bright and so glowy. So let me take you to that page. This is page number 12, and they have just enumerated 5 points. So the first one which they say is don't worry. So actually it is said that yes, we all know that tensions and worries, okay, that adds up to our age, and don't worry वी कैन नॉट मीन बाय दैट। लेकिन मैंने ऐसा बहुत बार पढ़ा है और बहुत बार सुना है कि हम जिंदगी में अपने वरी से, अपनी सोच से, सोच के मतलब जो हम ड्रीम करके सोचते हैं कि ये तकलीफ़ होगा, ये करेंगे तो ये तकलीफ़ होगा, उसमें हम जितना दुख झेलते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में हम उतना दुख नहीं झेलते हैं। सो वरी से कुछ नहीं होता है। लेट अस लिव आवर लाइफ एंड एक्सपीरियंस इट। इफ वॉट एवर कम्स वी हैव टू बेयर इट, इजंट इट? सो वो पहला पॉइंट है जो ओकिनावंस हमको बताए कि ये एक रीज़न है हम लोग वरी नहीं करते और हम लोग हर एक दिन को जिंदा दिली के साथ जीते हैं। सेकेंड वन इज कल्टिवेट गुड हैबिट्स। येस,
we all must have good habits, okay? The food, whatever the food which we eat, that should be organic, that should be healthy, okay? And drinks and smokes and all that, वो सब से अपने को थोड़ा सा एब्सटेन या एक लिमिटेशन बना के रखना होगा, और अपने डे टू डे लाइफ पे हमेशा एक चेक रखना होगा, ताकि हम अपने को देख पाए कि चलते चलते ज़िंदगी में हमने कुछ कोई गलत आदतें तो नहीं अपना ली है, और फिर अपने को करेक्ट करें. सो दैट इज़ अ कंप्लीट, यू कैन से अ कंप्लीट सिस्टम, अ कंप्लीट हैबिट, एंड lifelong we keep learning habits. So this was the second point. Third is nurture your friendships every day. Yes, it says that be connected with your friends. Here I would also say that your family members, your relatives, okay, you must be, and that gives you a mental peace, and you are in a happy mood. That sharing, that talking, that conversation really adds up to your life. It adds to the happiness to your life and to all of us, and we can remain happy. So this is the third point. Fourth one, it says live एन अनहरिड लाइफ. येस, हम लोग अपनी ज़िंदगी में हमेशा हड़बड़ाहट में रहते हैं. हमेशा हमको फटाफट, जैसे रोज़ हमें स्कूल जाना है, फटाफट उठो, 5 बजे उठो, नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ, मतलब भागते रहना है. हर कुछ आराम से करना है, उतना टाइम देना है कि लास्ट में हमें दौड़ना ना पड़े. सो लिव अनहरिड लाइफ. जैसे कि बच्चे जब जन्म लेते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ो, जल्दी जल्दी अपने पढ़ाई कंप्लीट करो, जल्दी जल्दी नौकरी करना है, जल्दी जल्दी शादी करनी है, जल्दी जल्दी बच्चे करने हैं. तो हर चीज़ जल्दी जल्दी हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आ जाता है. तो इससे भी बचना चाहिए. बी एट पीस, और हमको पीसफुल. बी ऑप्टिमिस्टिक. दिस इज़ द लास्ट पॉइंट. बी ऑप्टिमिस्टिक. वॉट एवर यू डू, अगर हम ये सोच के करेंगे कि नहीं ये हमसे नहीं होगा, या ये इम्पॉसिबल है, या मतलब अगर नेगेटिव फीलिंग हमारे दिमाग में पहले ही आ गया तो नहीं है. एंड एज वी ऑल नो, ये बताने वाली बात नहीं है, आपको भी पता है कि देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल फॉर us, the human beings. So everything is possible. So this is a really very good book, and I recommend friends that all of you must go through it. हर किसी को ये बुक पढ़ना चाहिए, और अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को भी पढ़ने के लिए दीजिए, ताकि कि ये जो 4 चीज़ें हैं, what you love, what you are good at, okay, what the world wants from you, and you also need to earn money. What prepares you to earn money, ये चारों चीज़ मिलना चाहिए अपनी ज़िंदगी में. और हर किसी को अपना इकिगाई पता होना चाहिए, तभी वो अपनी ज़िंदगी एक खुशहाल ज़िंदगी जी पाएगा और एक लॉन्गर लाइफ जी पाएगा. सो विद दिस I end up today's video, and I hope you liked it, and if you liked it, please put a thumbs up, please like the video, okay. And friends, अगर आप नए हैं वीडियो पर और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, and put your comments down, and yes, thank you all, thank you for watching, and I'll keep bringing you videos like this. Thank you all, thank you so much, thank you.